Today we will be talking about how to solve linear programming problems. Last two classes we have seen how to formulate a linear programming problem. Now we will see the graphical solution. Let us take one example, and with the help of that, we will try to solve that problem. So there is a question: a company manufactures two products. One second. A company manufactures two products. Actually, see, when the problem is given in tabular form, it is much easier to solve. So what we are going to do is we will try to make a tabular form of the whatever question is given, so that will be much better. So as you can see, a company manufactured two products, okay, by using three machines A, B and C. That means obviously the table will contain, if there are two products, like this. Okay, so here we are going to write two products are X and Y, and three machines A, B and C. Okay, machine A has 4 hours of capacity available. During the coming week. Similarly, the available capacity of machine B and C during the coming week is 24 hours and 35 hours respectively. One unit of product X requires 1 hour of machining on A, 3 hours on B and 10 hours on C. Okay, so 1 hour, 3 hour and 10 hour. Similarly, one unit of product Y requires 1 hour, 8 hour and 7 hours of machine A, B, C respectively. When one unit of X is sold in the market, X is sold in the market, it will say profit. So here is the profit. So X का profit कितना है 5 per product, and by if it is sold then it is 7. But it is written that A only can work 4 hours. That means this is the capacity of A, that is 4 hours. Capacity of B is 24 hours, and capacity of C is how much? 35 hours. Now all data are in tabular form. Now it will become very easy to formulate this problem, right? Otherwise, if it is there in the like sentence form, it becomes very difficult. So now we have tabular form, we can easily make it. So this capacity means it is a limitation, right? This is a limitation, and if it is a limitation, that means it is constraints, right? If this is a limitation, then this will be constraints. So this is a one constraint, this is another constraint, this is another constraint. Okay, what we have to do, find the optimal product mix. Means obviously we have to optimize the profit, so maximize the profit, maximize profit. Okay, so this will be the objective function.
right? So can we write Z is equal to, or maximize Z is equal to 5 per product of X. So let's suppose that X product is how many produced? X. Let there are X products, okay, and this is byproducts. So total profit will be 5 into X and 7 into Y, right? So see how I am doing the approach. The approach in this way, if you try to solve any problem, it will be much more easier. Last class when I was solving, it was very difficult to find out all the data and all everything. Now what I have done, I have prepared a table, and this table will tell you everything. So what we have to do, maximize profit. So 5 into X, 7 into Y, such that, or subjected to, what are the constraints? So constraints are these limitations. A can only work for 4 hours, this 24 hours, and this is 35 hours. So 4 hours, such that, see, 1 hour, one product takes 1 hour. So X product will take X hour, plus one product of buy takes 1 hour. So buy products will take buy hours, and that should be less than equal to 4, because this is maximum. Similarly 3x, यस मैंने बोला एक आवर, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X रिक्वायर्स 1 आवर ऑफ मशीनिंग ऑफ मशीन 1 A, समझ में आ रहा है? 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X, लेकिन हमने यहाँ पे कितना, सॉरी ये यूनिट्स यहाँ पे लिखो, X प्रोडक्ट्स नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यूनिट्स, है ना? इस टाइप का कितना यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया, लेट X यूनिट, और ये बाई यूनिट्स. तो बोल रहा है कि 1 यूनिट ऑफ X टेक्स 1 आवर ऑफ A. So X units of X will take X hour, plus 1 unit of buy takes 1 hour of A. So buy units of buy will take buy X plus buy less than 4. Similarly 3X plus 8Y less than 24. Means maximum 4 hour only it can work. जो मशीन A है वो 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है? तो आपको इसी तरह से चूज करना है कि X और Y, है ना, आप X कितना प्रोडक्ट लेना है आपको और Y कितना लेना है, ये आपको इस तरह से करना है कि मैक्सिमम जो है ना A मशीन पे 4 घंटे से ज़्यादा मतलब उस पर काम नहीं होना चाहिए. सो दैट इज हाउ इट इज लिमिटेड. फिर ये कितना है, दिस इज 10x plus 7y is less than 35. So these three are there, और x and y are greater than 0. तो हो गया क्वेश्चन तैयार, फॉर्मुलेशन इज रेडी. एनी डाउट? ओके, नाउ x यूनिट क्या निगेटिव हो सकता है? 0 हो सकता है, एंड दैट्स वाई इट इज रिटन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके ना? सो x कैन नेवर बी निगेटिव. आप क्या ये मतलब प्रोडक्ट निगेटिव में कभी नहीं हो सकता कि इतना प्रोडक्ट्स -5 प्रोडक्ट्स, ऐसा तो नहीं हो सकता. सो दैट्स वाई दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, नाउ सो ऑब्वियसली अब क्या है, ये हमारा ग्राफ एक मैंने लिया है, तो इसमें हम ये जो है ना, ये आपको कह रहा है कि दिस इज ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट. जब भी आप जो ग्राफ बनाओगे, सी देयर आर 4 quadrants here. If you plot here x and here y,
So x positive and y also positive, that means first quadrant, right? So obviously whatever solution we are going to get, that will be in the first quadrant. So there is no need of drawing this one. तो हम लोग क्या करते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ओके. नाउ वी विल गो ऑन मार्किंग. अच्छा, एक चीज और करना होगा आप लोग को इसको सॉल्व करने के लिए. सी, अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना है. ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस है. क्या है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 7y. दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका तो कुछ करना नहीं है. सबसे पहले हम लोग को कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करना होता है, ठीक है. फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द कंस्ट्रेंट्स. सो इक्वेशन फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 24. दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन. 10x प्लस y इज इक्वल टू 35. दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन. सो दीज आर द बाउंड्रीज. मैंने बताया ना, ये लिमिटेशंस है या कंस्ट्रेंट्स है, मतलब जो भी सॉल्यूशन लाई करेगा वो इन्हीं इक्वेशंस के द्वारा, मतलब जो बाउंड्री बनेगा उसी के अंदर एक सॉल्यूशन लाई करने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू व्हाट, यस, एक्चुअली जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर रहे हो, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, वेयर ऑल इक्वेशंस, ऑल इनइक्वालिटीज आर लीनियर फंक्शंस. लीनियर फंक्शंस के बारे में मैंने बताया था कि देयर विल बी एक्स टू द पावर आइदर 0 और 1. द एक्सपोनेंट आइदर 0 और 1. if it is 3x square plus 8y is equal to 24, so this will never be a straight line, this will be a curve, right? But this is not a linear function or linear equation, it is a non-linear equation. तो अगर आप लीनियर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आप डील कर रहे हो, so all the functions will be linear function. So always you will be getting a straight line. This is the you can say simplicity of this linear programming problem. अगर आपको नॉन लीनियर पढ़ना होगा तो वहां पे आप ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू डील विद द कर्व्स, you will not be dealing with the straight lines. Okay, so now what we are going to do is we are going to draw this x plus y is equal to 4. So what you have to do, first of all you make it like this. Right side you have to make it 1. Right side you have to make it 1. So how to make it 1? That is equal to 1. Here what you have to do, x by 8 y divided by 3 is equal to 1. 24 will come this side, so x by 8 by y. Okay, similarly this one will be x divided by 35 by 10 means 3.5 plus y divided by 35 by 7 means 5 is equal to 1. अब ये जो इक्वेशन फॉर्म है इसको प्लॉट करना बहुत आसान हो जाता है. यहाँ पे आप y लिखो and this side is x. Now whatever is there in the denominator, that will be the value on the respective axis you have to take. So x, it is 4, so just take one second, actually x is equal to 8 is there here, so 1 2 3 4 5 6. Okay, it will not be covered. Okay, leave it. So what I am going to do is
4. I will take 4 for each. Okay, so this is 1. After that, this is 0.5, this is 1.5, this is 2, this is 2.5, this is 3, this is 3.5, this is 4, this is 4.5, this is 5, this is 5.5, this is 6, this is 6.5, and this is 7, 7.5, and this is 8. This is 8. Okay, this side also same. This is 1, this is 2, 3, 4, 5, maximum 5, so there is no need of going further. Okay, here is x. Now put all the values. X4 by 4, so x4 is this point, by 4 is this point, so draw the straight line. Okay, this is one straight line, so for this one it's done. X8 and by 3, x8 and by 3, draw the straight line. Next, x is 3.5, x is 3.5, this one, and by is equal to 5. Done. Clear? So all the three constraints are drawn. Now these are equations, but our real constraints are this one, isn't it? These are the real constraints. So this should be less than 4, x plus y less than 4. So where is that line? Okay, आपको नाम भी लिखना होगा ना इसका. So ये है x plus y is equal to 4. This line, what is this line? This is 3x plus 8y is equal to 24. This line is 10x plus 7y is equal to 35. Clear? But it is told that x plus y should be less than 4. अब less than 4 किस तरफ होगा? ये लाइन है, तो इस लाइन पे x plus y is equal to 4 है, ठीक है? तो less than 4 किस तरफ होना चाहिए? Means this side on it will be less than 4. Yes, so all the regions towards origin will be, हम लोग इसको एरो से दिखा देते हैं, ठीक है? मतलब ये जितना भी रीजन है, ये आप देख रहे हो ना, this region, okay, just below x plus y is equal to 4, all the region up to origin will be the zone where x plus y is less than 4. अब देखो कहीं पे भी ये पॉइंट ले लो, लेट सपोज ये पॉइंट, ठीक है? आपने ये पॉइंट लिया, ये कौन सा पॉइंट है? और ये वाला पॉइंट, दिस वन. So this is 1.5 here and this is 1. तो x is equal to 1.5 and y is equal to 1. आप दोनों को ऐड किया तो कितना आया? It is less than 4. Clear? So any point you will take just below this line x plus y is equal to 4. So that will give you x plus y less than 4. Clear? तो कोई भी पॉइंट आप ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, this is 1 and this is 3, this one 1 and 3. ओ ये तो पूरा इस लाइन पे ही आ गया, ठीक है? तो मतलब आपको रीजन कौन सा लेना है? तो यहाँ पे बताया गया है लेस देन और इक्वल टू 4. मतलब लेस देन मतलब बिलो दैट लाइन, टुवर्ड्स origin, this is the origin, so towards origin you have to take, and also on the line itself
whatever points are there, that also will be considered, because x plus y is equal to 4 is also there. So all the points on the line plus all the points below the line towards origin, so that all points will be considered here. ठीक है, तो मैं ये डिलीट कर दे रहा हूं. Okay, so just show it with 2 arrows. Okay, no need of showing whole, shading all the area. There is no need of that. Just show it by 2 arrows. Next is second line is 3x plus 8y less than 24. That means obviously it will be below this line. So just show it by the line itself. Okay. This one and this one, and the last one is also less than, so obviously this will be less than. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि कौन सा रीजन जो है वो हमारा कंसिडरेबल है, मतलब उसी रीजन में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है. आप उससे बियॉन्ड जाओगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, बिकॉज वो कंस्ट्रेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जो लिमिटेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है. तो अब आपको देखना क्या है, यू हैव टू सी कि विच इज द मोस्ट कॉमन रीजन. सी, अगर आप ये पॉइंट लेते हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो रहा है, दिस पॉइंट विल नॉट बी, आप ये लाइन कंसिडर करो 3x plus 8y is equal to 24. So this point is not satisfying this equation, so this point will not be considered. Although it is satisfying this line, that is 10x plus 7y is equal to 35, but this point itself is not satisfying this equation. So आपको वैसा रीजन ढूंढना है which is satisfying all the equations. X plus y is equal to 4, 10x plus 7y is equal to 35, and 3x plus 8y is equal to 24. Or you can say the inequalities itself. Means the region which is satisfying this all 3 inequalities, that is known as feasible region. उसको क्या बोलते हैं, feasible region. Feasible region मतलब the region where you are going to which is satisfied by all the constraints. Okay, so find out that region. तो ये तो पॉइंट नहीं होगा, मतलब ये रीजन डिस्कार्डेड. Okay, this region is discarded, this region is also discarded, this region is also discarded, this one also discarded, this one is also discarded. Means only this and this. ये जो आप डॉट्स देख रहे हो ना, इससे जो सराउंडिंग जो रीजन है, दैट रीजन इज द feasible region, because this region itself is satisfying all the equations. So just आप देखो, मैं इसको सेट कर दे रहा हूं, जो रीजन feasible रीजन. Okay, so this is the region which is feasible region, yellow region. Okay, अब आपको सॉल्यूशन इसी में ढूंढना है कि z का वैल्यू इस रीजन में किस पॉइंट पे मैक्सिमम होने वाला है. हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज z, राइट. we have to maximize z is equal to 5x plus 7y. that means x and y का वो वैल्यू हमें चूज करना है जिसके लिए z मैक्सिमम हो. तो आप ढूंढो कौन सा पॉइंट यहाँ पे होगा जहां पे z का मैक्सिमम होगा. हाउ, हाँ,
3.5, 3 कहाँ गया? 3.5 means here this one, and comma 3 ये यहाँ चला गया, तो ये तो बाहर है ये पॉइंट। ये तो बाहर है, ये दैट इज नॉट पॉसिबल। 3.5, 3 is not possible because that is outside the feasible region. You have to choose within this region itself. 3 again it is outside. See 3 कहाँ आ रहा है? This is 3, this side is 3, somewhere here outside. टू अब 2 and 2 ओके, ये अंदर आ रहा है, लेकिन क्या ये मैक्सिमम देगा? आपको लगता है कि मैक्सिमम यही देने वाला है? नहीं, वो बाहर गया। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कि आप आर्बिट्ररली आप तो पूरा, देर आर इनन्यूमरेबल पॉइंट्स इनसाइड, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इस लाइन को ही लेकर के चलते हैं। आप इसको क्या करो ना, इसको इक्वल टू 0 कर लो शुरू में, +7y=0, ठीक है। अब इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो क्या? 5x + 7y=0। नहीं, ठीक है, कोई आर्बिट्ररी नंबर ले लो, 35। आप ऐसा करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके और यहां पे लिख देना, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। नाउ यू कैन ड्रॉ दिस वन, 5x + 7y=35। कैन यू ड्रॉ दिस? सो अब आप इसको पहले कन्वर्ट करोगे, x / y 7, y / y 5 = 1, so x पे 7, this one, by 5, this one, draw this line. This is the line. अब ये लाइन जो है हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? लाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब इस लाइन, यही लाइन जो है हमको बताएगा कि कहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है। अच्छा, ये लाइन अभी 5 और 7 से होकर के गुजर रहा है, ठीक है, क्या ये फिजिबल रीजन में आ रहा है? ये लाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इज इट कमिंग अंडर फिजिबल रीजन? बाहर है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा? इसको आपको पैरेलली शिफ्ट करना होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, धीरे धीरे, ठीक है, कि ऐसा समय आएगा कि कोई इसमें से जो है ना, मतलब इसका जो बाउंड्री है उसको टच करेगा। जैसे ही टच किया, जिस पॉइंट पे टच करेगा पहली बार, दैट पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट, मींस दैट विल गिव यू द मैक्सिमम पॉइंट। आर यू गेटिंग और नॉट? अभी आप देखो, अभी इसका वैल्यू 35 है, जेड का वैल्यू क्या है? 35, बट जेड का वैल्यू 35 है, दैट इज बियॉन्ड द फिजिबल रीजन। दैट मीन्स 35 से थोड़ा कम होना चाहिए, राइट? सो 35 से कम क्या हो सकता है? एनीथिंग, लेट सपोज 20 इज देयर, तो आप उसको ड्रॉ करोगे तो एक पैरेलल लाइन आएगा, फिर आप ड्रॉ करोगे समथिंग 15, तो एक और पैरेलल लाइन आएगा। तो इस तरह से पैरेलल लाइंस ड्रॉ होते जाएंगे, ठीक है। बट यू हैव टू फाइंड पॉइंट on this, in this feasible region through which this line will be passing, okay, first time, मतलब जब आप ये origin की तरफ मूव करेगा ना, ये लाइन पैरेलली ऐसे मूव करने वाला है, it's going down down like this and it will touch somewhere, या तो यहाँ पे टच करेगा या फिर कहीं पे भी। ये क्या होगा? somewhere it will be touching
इसको रिमूव करो। हाँ यहाँ पे दिस वन, यस करेक्ट। सी ऐसे तो पता एक्चुअली अभी ये हम तो क्लियर पता चल रहा है कि ये इसी पॉइंट से होकर के ना पहली बार ये पास होने वाला है। ये थोड़ा सा क्लियर हो गया, ग्राफ मैंने बनाया है तब, लेकिन अगर ग्राफ ना हो है नहीं है, आपको ग्राफ दिया ही नहीं गया, आपको बोला गया ऐसे ही सॉल्व करो पेज पे, है ना, प्लेन पेज है, एंड हाउ विल यू बी एबल टू फाइंड आउट कि थ्रू विच पॉइंट इट इज गोइंग टू पास, इन दैट केस इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, हाँ तो लेकिन पहले यही वाला मेथड हम लोग समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड भी हम लोग जानेंगे कि उससे आसान मेथड कौन सा है। ये जो है ना, पहले पहले आप जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद शॉर्टकट्स हम लोग यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जेड का वैल्यू आपको निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जो कि फिजिबल रीजन में आए। जेड का मैक्सिमम वैल्यू ऐसा चाहिए जो कि फिजिबल रीजन में आए। अभी हमने 35 कंसीडर करके रखा तो पता चला कि ये आउट ऑफ द फिजिबल रीजन है। अगर 30 रखते हैं तो ये क्या है, ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा, है ना। जस्ट ड्रॉ दैट लाइन, लेट सपोज अगर आपने 30 रखा तो ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ आया। 25 रखा तो और थोड़ा नीचे आया, और 20 रखा तो और थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, अब ये पता नहीं कहाँ पे आएगा, बट मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे जैसे आप वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन आपने देखा कि 20 एंड 15 इसके बीच में कहीं पे ऐसा है जब जेड का वैल्यू, जहां पे ये सी नाउ दिस लाइन इज कमिंग इनसाइड, ओके, बट दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू, इजंट इट। इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वो भी मैक्सिमम उससे ग्रेटर है, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो उससे ग्रेटर एक ऐसा लाइन आएगा। ठीक है, दिस वन, दिस लाइन विच इज जस्ट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, समझ में आ रहा है, ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। ओके, so the point, this point is the optimum or you can say that is the solution। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि कैसे सॉल्व करना है। तो जनरली ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों ने पढ़ा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या करते हैं, हमें अगर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए हम लोग ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं। ओके, जहां पे हाँ करेक्ट, तो वही सेट स्क्वायर, दोनों सेट स्क्वायर को रख करके आप अगर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट जो है दैट बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां से ये लाइन पास करने वाला है। ठीक है, ओनली वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट, सो दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन। वहीं पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और वो मैक्सिमम वैल्यू फिजिबल रीजन में होगा। ठीक है, जेड का मैक्सिमम वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स और वाई का कुछ भी वैल्यू लोगे तो जेड का कुछ वैल्यू आ जाएगा ऑब्वियसली, बट इज इट इन द फिजिबल, यू हैव टू चेक, एंड इज इट द मैक्सिमम वैल्यू, दैट यू हैव टू चेक। तो इसलिए इसको, उस लाइन को पहले आर्बिट्ररली ड्रॉ करते हैं और उसको फिर शिफ्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, लिटिल बिट वी गो ऑन शिफ्टिंग एंड वी फाइंड दैट एक ऐसा पॉइंट होगा ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन वेयर it will touch only a single point, not any other points, because उससे नीचे जैसे ही आएगा ना तो क्या होगा, अब बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, बट दैट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब ये पॉइंट है क्या, तो ये 2.5, अच्छा यहाँ पे कितना है 1.5 एंड दिस इज 2.5, दैट मीन्स the solution is x is equal to 1.5 and y is equal to 2.5। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए आप, x एंड y का वैल्यू वहां पे पुट करो
एंड जेड का वैल्यू कितना होगा 7.5 एंड दिस इज 17.5 ऐड करो 25 इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर ये सब हो तब, और ग्राफ सीट हो। ठीक है, ग्राफ सीट नहीं, आपके पास एटलीस्ट रूल होना चाहिए, है ना, स्टिल रूल कुछ भी होना चाहिए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। लेकिन ये मेथड हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? तो ये एक बेनिफिट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का। ठीक है, एक्चुअली ये जो मेथड है ना, ये आप नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये ज़्यादा यूजफुल होता है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में इससे आसान मेथड हमारे पास है। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे मेथड पे। सो लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, कंट्रोल P। हो गया, ओके। सो लेट मी जस्ट डिलीट ऑल द थिंग्स। ये पार्ट हमको डिलीट करना होगा फिर से। आज लगता है एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। आपको समझना जरूरी है, एक बार समझ गए तो फिर बाकी सारा क्वेश्चंस कर सकते हो। एक्चुअली वी हैव डन दिस वन इन 11, 12 और मे बी बिफोर दैट 10th, बट वी नेवर न्यू कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, क्यों हम लोग ऐसा यूज करते हैं, और इसलिए आज तक कंफ्यूजन रहता है एंड वी डू मिस्टेक्स। सो फर्स्ट लाइन इज ओके, वो एरिया इंटीग्रेशन वो दूसरा चीज है ना। दिस इज द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन इज 8 and 3, 8 and 3, 3.5, x is equal to 3.5 and 5, done. Okay, so just name the lines. So this is which line is this? 10x plus 7y is equal to 35. This line is 3x plus 8y is equal to 24, and this one is equal to 4. So we got the points. Okay, this is the first point, boundary point, feasible region wala, not this one. Never do that mistake. ये वाला पॉइंट जो है आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट फिजिबल रीजन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि x plus y is equal to 4 is not satisfying this, this point is not satisfying x plus y is equal to 4. It is outside that line. तो ये टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, और एक ये पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट्स हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फायदा क्या है कि आप जब जो लाइन करते थे ना, मैंने बताया 5 and 7, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया? दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जब भी पास होगा, अच्छा लेट सपोज आप देखो एक लाइन है, लेट सपोज ये है, ठीक है, तो और एक लाइन ये है। अब आप बताओ कि ये जो लाइन है, दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, सो
इस लाइन को कहां पे पहली बार टच करने वाला है? दिस इज गोइंग टू टच एट दिस पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और नॉट? ठीक है, तो ये बेनिफिट है स्ट्रेट लाइंस का। ये स्ट्रेट लाइन है तो सबसे पहले ये इसी पॉइंट को टच करने वाला है, करेक्ट, विच इज द फार्देस्ट पॉइंट ऑन दैट लाइन। क्लियर? तो मतलब यही चीज आपको यहाँ पे समझना है कि जब जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होगे तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपको जो भी सॉल्यूशन मिलने वाला है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिडिल में कहीं पे ये लाइन जा करके और टच कर रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जब भी वो आएगा मतलब इट विल कम डाउन, इट विल बी टचिंग वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स, कोई एक कॉर्नर पॉइंट को ही टच करने वाला है पहली बार। अब सोचो ना, लेट सपोज आप कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हो, आप देखो, सॉरी, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो कहाँ पे आप देखो एक पॉइंट पे टच करता है, ये ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज ये ध्यान रखना है, जब ये लाइन आप ट्रांसलेट करोगे तो कहाँ से पास होगा? देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये एक पॉइंट से, ये कॉर्नर पॉइंट से पास हो रहा है। सिमिलरली आप देखो यही लाइन, सेम लाइन को अगर आपने ट्रांसलेट किया तो कहां से पास हो रहा है? ये कॉर्नर पॉइंट से। इस लाइन पे सिर्फ इस कॉर्नर पॉइंट से पास हो रहा है। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे ड्रॉ करोगे यही लाइन को तो ये सिर्फ एक पॉइंट से ही पास हो रहा है, दैट इज द कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो आपको जब भी सॉल्यूशन मिलने वाला है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलने वाला है। ओके, तो इसलिए आपको सिर्फ चेक करना है कॉर्नर पॉइंट्स पे और कहीं चेक करना है। इस पॉइंट तो टोटल 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो आपको हर एक कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू x और y का वैल्यू z में पुट करके देख लेना है। ठीक है, तब आपको उसमें से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन। सो लेट अस डू दैट, x, y एंड z। पहला जो पॉइंट है वो है ये वाला, दिस इज x इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 0, y इज इक्वल टू 3, so z value how much? 21, right? Second point is this one. What is this point? This is 1.5 and 2.5, so x is equal to 1.5 and equal to 2.5, so this is giving you 25. Third point is this one. What is that point? This point is, I think here it is. It's difficult to find out corner points. अच्छा, आप बता सकते हो ये कौन सा पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट? कैसे कैसे बता दिया आपने कि 2,2 है? हाँ, वैसे नहीं बताया जाता है, दिस इज नॉट द वे। सी, देर आर टू लाइन्स, एक लाइन क्या है x प्लस बाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा लाइन क्या है 10x प्लस 7 बाई इज इक्वल टू 35। ये दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे को, कैन यू फाइंड आउट x एंड y दैट पॉइंट? आप लोगों ने सॉल्व किया है ना 10th में 9th में। अगर दो लाइन्स है, बोथ आर कट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हैव यू डन दैट? Okay, see 10x plus 7y is equal to 35 and this is x plus y is equal to 4. So can you find out x and y value? Solve these two equations. Tell me what is the value. Solve it and find out.
Got it? Ten x plus 7y is equal to 35, x plus y is equal to 4. Find out the intersection point. दो इक्वेशन सॉल्व करना है, करो जल्दी. So okay, so see, whatever, you just go on the internet and find out how to solve two equations. मैं यहाँ पे बता रहा हूँ x is equal to 7/3 and y is equal to 5/3. That point will be 7/3 and 5/3. Okay, so now put it there 5/3, and how much is the z value? Actually ये भी point we are not clear. It is 1.5 and 2.5. We don't know. We need to actually find out. Let me find out that also. I don't know. Okay, if we put it 3x 3y, then it is 12. So it will be 5y is equal to 12. Oh, so y is equal to 12 by 5. That means 2.4. So y is equal to 2.4. तो ये गलत हो गया, ये 2.4 है, and x is equal to how much? 1.6. So it will be, I think, 8 plus 2.27. How much is that? 16.8. 16.8 plus 8 is equal to 24.8. Okay, so 7/3 and 5/3, put it there. 35/3 plus 35/3, that means 70/3. So 70/3, how much is that? 23.33. Fourth point is this one. This is clear. This is 3.5 and 0. This is 5 and 0. So how much is z value? So 17.5. Fifth point is origin, 0 and 0. How much is z value? 0. ठीक है, तो 5 पॉइंट्स पे हमने वैल्यू निकाल लिया. अब आप बताओ कि कहां पे मैक्सिमम आ रहा है. Which point we are getting maximum value? That will be the answer. 24.8. That means x is equal to 1.6 and y is equal to 2.4. तो यही आंसर होगा. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द ऑप्टिमल x. मतलब x का कितना यूनिट लेना है आपको? 1.6 लेना है, और y का कितना यूनिट? 2.4 यूनिट लेना है. तो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज 24.8 रुपीज प्रॉफिट. अगर आपने और कोई मतलब आपने कुछ भी लिया तो वो इससे कम ही होगा. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन. क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे. एक और कुछ कर लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट. आई एम डिलीटिंग एवरीथिंग. Minimize the total cost.
चलो इसको ही देखते हैं, या फिर एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम इज नॉट गुड। ठीक है, इसी को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम है? 7 मिनट्स। ओके, सो वी विल डू इट वेरी वेरी फास्ट। ए फार्म इज ब्रीडिंग हेन्स। हेन्स आर फेड ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स ग्रोन ऑन द फार्म। ठीक है, इन द व्यू ऑफ नीड टू इंश्योर सर्टेन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्स बाई जेड, मतलब विटामिन ए है, आयरन है और कुछ है, मतलब मुर्गियों को इतना ये विटामिन चाहिए, ठीक है, एक्स बाई जेड। लेकिन वो आपको जो भी प्रोडक्ट फॉर्म में ग्रो होता है वहां से उसको मिल नहीं रहा है। इट इज नेसेसरी टू बाई 2 एडिशनल प्रोडक्ट्स ए एंड बी। तो क्या करना पड़ रहा है उसको? 2 एडिशनल प्रोडक्ट्स उसको खरीदने पड़ रहे हैं बाहर से। 1 unit of product A contains 36 units of X, Y and Z. 1 unit of product B contains 6X, 12Y and 10Z. Minimum requirement of X, Y, Z is this. Product A costs this and this. Minimize the total cost. So first of all, make the table. The best way is to make the table. So 2 and 3 is there. तो हम लोग क्या करेंगे? 2 and 3 का ही टेबल बनाएंगे। सॉरी, ओके, हमारा यहाँ पे क्या है? 2 प्रोडक्ट्स है ए एंड बी, और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चाहिए? एक्स बाई जेड चाहिए। ओके, बोल रहे हैं कि 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए कंटेन्स 36 यूनिट ऑफ एक्स, 3 units of Y and 20 units of Z. 1 unit of product B contains 6 units of X, 12 units of Y and 10 units of Z. Minimum requirement of X by Z, मतलब X का minimum requirement 108 है, Y का minimum requirement 36 and this is 100. ये है minimum requirement, मतलब हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया। दिस इज द लिमिटेशन, मतलब इससे आप कम नहीं रख सकते। 108 से कम अगर आपने दिया तो मुर्गी क्या हो जाएगा? द हेन्स विल नॉट बी हेल्दी, दे विल बी माल न्यूट्रिशन। सो यू हैव टू गिव मिनिमम कंस्ट्रेंट्स, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट इज दिस वन। सो कंस्ट्रेंट्स आपको पता चल गया क्या है। अब आप चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। प्रोडक्ट ए कॉस्ट 20 पर यूनिट। ओके, सो दिस इज द कॉस्ट। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, पिछले क्वेश्चन में क्या था? प्रॉफिट था, बट हेयर इट इज कॉस्ट। सो कॉस्ट इज 20 रुपीज फॉर प्रोडक्ट ए पर यूनिट एंड बी इज 40 रुपीज पर यूनिट। अब आपको मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, मतलब दिस इज द फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो लेट अस सपोज जो ए प्रोडक्ट है वो कितना यूनिट आपने खरीदा है? एक्स यूनिट, और प्रोडक्ट बी आपने कितना यूनिट? बाई यूनिट। क्लियर? तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 20x और ये 40y, मीन्स 20x प्लस 40y। दिस इज टू बी मिनिमाइज्ड, दिस इज द टोटल कॉस्ट। सो मिनिमाइज z is equal to 20x plus 40y. This is your objective function. What are the constraints? तो बोल रहा है कि 1 unit of A produces 36 units of X. That means X unit of A will produce 36X, and B unit of 1 unit of B produces 6 unit of X. So by unit of B will produce 6 by. So 36x plus 6 by should be less than equal to 108. ये लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा? लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू? नो, ग्रेटर। हाँ, करेक्ट। सो दिस, यस,
So this requirement should not be less than 108, means this should be greater than 108. Clear? Similarly, 3x plus 12y should be greater than equal to 36x, 36. 20x plus 10y is greater than 100. Ready? And x and y can never be negative, so should be always greater than equal to 0. तो आसान हो गया, सब कुछ रेडी है. What you have to do, first of all, convert this one, all the constraint, these are the constraint, इसको equations में convert करेंगे. 3x 36x plus 6y is equal to 108, 3x plus 12y is equal to 36, 20x plus 10y is equal to 100. पहले इसको आपको क्या करना है, राइट साइड में 1 लाना है. सो x by 3 by how much, 18, yeah, is equal to 1. This one is x by 12 and by 3 equal to 1. This one x by 5 and by 10 is equal to 1. Okay, all the equations are ready. So we are going to draw that. Just put it here. Okay, this side is x, this is by x, how much, x is equal to 3, y is equal to 18. आपको क्या करना होगा, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. This is 18. Oh, sorry, I think, oh, y is equal to 18, no? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. This is 18. Y is equal to 18, x is equal to 3. This is the line. Draw that line. X is equal to and y is equal to, okay, x is equal to 12, y is equal to 3. X is equal to 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. This is the point, and y is equal to 3. Okay, forward. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, so and y is equal to 3, this one. Okay, mistake. Then x is equal to 5 and y is equal to 10. 5 is this and 10 this side. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is that line. So let me take another color and draw that 5. So we got all the lines. Okay, now it is told this is greater than equal to 108. मतलब क्या हुआ, किस साइड, towards origin or away from origin? Away from origin. That means this is this side. Okay, and this side. Similarly, this is also away from origin, so this side. And this side, and this is also this side and this side. Which is the common region? So the common region is this whole region. आप देख रहे हो, this region, ये जो रीजन है ना, ये हो गया कॉमन रीजन. मतलब इस रीजन में कहीं पे भी
आपको जो, क्योंकि ये तीनों को सेटिस्फाई कर, मिनिमम कह रहा है ना, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने इफ यू आर फीडिंग हेन्स like too much, so they will be growing also very nicely, isn't it? So there is no limitation of feeding, आपका कितना भी, बट मिनिमम इतना होना चाहिए। तो वो बाउंड्री पॉइंट्स क्या क्या हैं? दिस so what are the boundary points? This is one, this is another, this is another, and this one is another one. What is the point name? This one, x is equal to 0, y is equal to 18. This is first point A, ठीक है? इसका नाम क्या है? What is this point? Do we know that or we have to solve? Okay, we have to solve. हाँ, इसका ये तो पता है ना, ये कौन सा पॉइंट है? ये आई थिंक 12 है ना? हाँ 12 comma, so this is D. What is this point? That also we have to find. What is this line? This is the first line, that is 36 x plus 6y is equal to 108. And this blue color line is this one, 3x plus 12y. Is it? No. x is equal to 12. ये है ये वाला, that means 20x 10y is equal to 100. And what is this line? This pink color is 3x plus 12y is equal to 36. See, better write down the name of the lines and also the name of the corner points. When you will write down, then it will be you will not be getting confused. आपको पता होगा कि कौन सा लाइन कौन सा है. Now आपको ये पॉइंट चाहिए B. So B is a intersection of which lines? 30x 36x plus 6y is equal to 108, and this one 20x plus 10y is equal to 100. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So it will how much? 1.4 comma. Okay, this is B. Okay, I'll just take your whatever you are telling. And what about C? These two lines. C line will be we will get by 20x plus 10y is equal to 100, and another line is 3x plus 12y is equal to 36. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. 2x plus y is equal to 10, and this is how much? X plus 4y is equal to 12. If we write 2, 8, 24, cancelled, 7y is equal to 14, y is equal to 2, x is equal to how much? 8, 4. So this point is x is equal to 4 and y is equal to 2. ठीक है? We have got that value, C value, clear? 4 and 2. All the corner points we have got. Now we will create the table. X by 1, 2, 3, 4. Point number 1, A, 0, 18. Find out the Z value. B, 1.4, 4.3. Find out the Z value. C, 4 by and find out the Z value. D, Z is how much? 20x plus 40y is equal to how much? So D is 12 and 0. Find out the Z value. If you put y is equal to 18 here, how much is that? 720, right?
1.4, that is 28. 4.3, yes, yes. 2,6. Okay. So this is 2,6. Okay. So just put it here, 2 and 6. So how much is that? 40 plus 240, 280. 4 and 2. How much is that? 80 plus 80, 160. 12, 240. Now tell me which is the answer. Or A is the answer, 720. Yes, correct. So this is minimum value and this is the answer. That means you have to take 4 units of A and 2 units of B, that is the optimal mixture. ठीक है, आपको ताकि कॉस्ट कम होगा और सारे जो आपको न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनिमम न्यूट्रिएंट्स जिसको जिसको जितना जितना चाहिए सबको मिलने वाला है और कॉस्ट भी आपको सबसे कम लगे. आप सोचो कि कितना डिफरेंस हो रहा है. यू लुक एट दिस वन. अगर आपने ये चूज कर लिया होता, सी दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द मिनिमम न्यूट्रिएंट्स जो आप उसको चाहिए, है ना, लेकिन कॉस्ट कितना हो गया, 720 रुपीज ही हैज टू पे, राइट. तो आप समझ सकते हो ऑप्टिमाइजेशन हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, कि आप रिसोर्सेज का बर्बादी हो रहा है एंड मीन्स बट फायदा उतना नहीं है कुछ भी. ठीक है. So that's why operations research is very very important. In every field it can be utilized and you will be getting. तो आज हम लोग अभी स्टॉप करते हैं यहीं पे और आप लोग को क्विज में देता हूँ. दो क्वेश्चन मैं दूंगा अभी. आप लोग ट्राई करो उसको सॉल्व करके और आंसर लाने का ऑन द ग्राफ पेपर का जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है मैंने बता दिया. बिकॉज आपको जो भी पॉइंट्स चाहिए वो आप इक्वेशंस को सॉल्व करके और आप ले सकते हो, है ना. कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट्स है. सो इट विल बी मच इजियर. सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी ग्राफ पेपर. यू कैन जस्ट सॉल्व ऑन ए रफ शीट एंड यू कैन फाइंड आउट. क्लियर. ओके.